Hello learners, in the series of mensuration, we are discussing exercise 11.4. हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 सेंटीमीटर. तो एक हमें सिलेंडर गिवन है यहाँ पर. इसमें आपको दे रखा है, एक तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 140 सेंटीमीटर. तो यहां पे हमने लिखा है गिवन डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 140 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज 70 सेंटीमीटर and also given the volume of cylinder is, वॉल्यूम दे रखा है इसका 1.54 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो वी हैव नोन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दैट equal to base area into height. You have known about the simplify formula is there, pi r square to h. H is the height of the cylinder. So volume is given 1.54 centimeter cube. सॉरी मीटर क्यूब, 1.54 मीटर क्यूब. तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारे पास हो जाएगा इस तरह से 154 और ये हुआ डिजिट, यहां पे आ गया डेसिमल 2 डिजिट के बाद. तो ये हो गया हमारा इन सेंटीमीटर क्यूब. सो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज देयर 154,000 इक्वल टू वैल्यू ऑफ पाई इज 22.7 and radius of the cylinder is 70 centimeter because given diameter of the cylinder is 140 centimeter. So 70 multiply 70 multiply height of the cylinder h. So by this calculation 7 divided by 70 is 10. तो हम लोग इसके बाद एक्सचेंज करके इसकी जो हमारे पास वेरिएबल्स है, यानी हमारे पास जो हाइट ऑफ द सिलेंडर h है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे. तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 22, 10 और 70. तो ये हमारे पास 2 जीरो इसमें कैंसिल आउट हो गए. अब ये 7 से हम इसको 2 2 0 0 then 22 again 100. So height of the cylinder is 100 centimeter.
by this calculation, hence the height of the cylinder is 100 centimeter. So we move further. Question number 6 is there. Question number 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter. तो ये हमारे पास ये डायग्राम में दे रखा है, एक ट्रक है, मिल्क टैंक है. तो वो इसमें क्या है, वो है उसका, इस तरह से हम इसको देख रहे हैं. वो एक आपका सिलेंड्रिकल शेप है. तो सिलेंड्रिकल शेप है, उसका रेडियस दे रखा है आपको, गिवन है 1.5 मीटर. एंड लेंथ इज 7 मीटर. लेंथ इज 7 मीटर. लेंथ मीन्स हाइट इज 7 मीटर. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. So we have to calculate capacity of the vessel. So capacity of vessel is equal to the volume of the vessel. तो हमारे पास कैलकुलेट करना है कैपेसिटी ऑफ वेसल. कैपेसिटी मीन्स लिक्विड, अमाउंट ऑफ द लिक्विड occupied by this vessel. So capacity is equal to volume of cylinder. तो हमारे पास इस तरह से रहेगा. तो we have known about the volume of cylinder is there. Volume of cylinder is equal to pi r square h. So pi value 22/7 and radius of this 1.5 meter. Then 1.5 multiply 1.5. H, height of the cylinder is 7 meter. 7 meter. Then 7 cancel out by 7. 22 multiply 22.5. सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास 2.25. तो बाय द कैलकुलेशन 2.25 10 So volume of the cylinder is 49.50 meter cube. So in this case volume of the cylinder is there, but capacity is according to 1 liter. Capacity unit is liter. So 1 liter equal to एक 1000 ml means 1000 centimeter cube. So in this case 49.50 m cube is equal to the, so हम यहाँ पे लिखेंगे capacity of the vessel
sorry, volume of the cylinder in centimeter cube is equal to 49.50 multiply so 495 centimeter cube. In the case of capacity, you have seen in this line 1 liter is equal to 1000 ml and is equal to volume of the vessel is 1000 centimeter cube. So capacity of given cylinder is equal to divided by 4950 liter. So capacity of the given cylinder, given tank is 4950 liter. So we move further. Question number 7 is there. Question number 7 is there. If each edge of the cube is doubled, one cube is there, so given नहीं, हम यहाँ पे करेंगे let side of the cube is equal to x. अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल बी इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज. अगर हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब x है, अगर ये साइड ऑफ द क्यूब को हम डबल कर देते हैं, एज ऑफ द क्यूब इज डबल, तो डबल का मतलब इन केस 1, इन केस 2, एज of cube is equal to 2x, means in this case x and in second case is 2x. So how many times will its surface area increase? So we have known about the surface area of cube is, so we will calculate surface area of in both cases. यहाँ पे लिखेंगे total surface area, total surface area of cube is equal to 6 into a square. a square means side square. तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, a की वैल्यू है x, तो देन 6x square unit. In this second case, total surface area of given of cube, ये हमारे पास हो जाएगा 6a स्क्वायर, सो 6 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2x, 2x का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, सो 24x स्क्वायर. So by this
calculation of total surface area of cube, you can imagine the changes. The changes is so यहाँ पे लिख देंगे hence the changes of side is doubled, then area, hence the area of cube is be doubled, then total surface area of cube will 4 times of its previous values. इस तरह से हमारे पास आंसर रहेगा. तो इसी का सेकंड स्टेटमेंट इज देयर, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. तो ये हो गया हमारे पास इन केस ऑफ सरफेस एरिया. देन यहां पे हम बात करेंगे इन केस ऑफ वॉल्यूम. In case of volume, we have known about the volume of cube is equal to side का क्यूब यानी a क्यूब. So x cube is there. Then in second case, volume of cube is equal to 2x whole cube, then 8x cube. So in case of volume, its volume increase with 8 times. If the value of edge of cube increase by double, then volume of cube increase by 8 times of its previous volume. Hence, if we increase the edge of cube, then volume of cube increase with 8 times by previous volume. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. देन वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is there. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will be take to fill the reservoir. Okay. तो हमारे पास एक इस तरह से ये हमारे पास क्यूबॉइडल शेप का एक बेजल है जिसमें वाटर फिल किया जा रहा है. वाटर फिल करने की कैपेसिटी गिवन है, गिवन रेट
गिवन है 60 मिनट पर 60 लीटर पर मिनट रेट है, रेट ऑफ वाटर pouring, वो आपको दे रखी है 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो और हमें क्या इसमें दे रखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ, ये लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस रिजर्वियर, यानी क्यूबॉइडल शेप क्यूबॉइड है ये हमारे पास, इसका दे रखा है टोटल वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मच आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल बी टेक टू फिल द रिजर्वियर, कितने घंटे लगेंगे हमें इस रिजर्वियर को पूरा फुल करने में। तो मतलब ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आपको इस तरह से दे रखा है, तो हम करेंगे इन सेंटीमीटर्स, इन सेंटीमीटर्स में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 10 lakh, because you have known 1 meter cube is equal to contain 10 lakh सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास 108 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स टोटल वॉल्यूम। सो व्हाट द रेट ऑफ वाटर pouring इन, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे टोटल कैपेसिटी, यहाँ पे इसको लिखेंगे मैक्स कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा 108 we have known 1 liter is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 10,000 वो 1,08,000 लीटर इसका टोटल हमारे पास कैपेसिटी है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये रेट ऑफ वाटर pouring इज 60 मिनट्स पर लीटर, देन द हाउ मेनी आवर्स टेकन टू फिल दिस टैंक। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि टोटल टाइम टेकन टू फिल इट फिल इट फुल। तो इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, हमारे पास टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल इज 1,08,000 लीटर। तो हमारे पास अगर 1 मिनट में 60 लीटर वाटर आता है, तो 60 का डिवाइड हम करेंगे इस तरह से, तो ये आ गया आपके पास 6 1 जा 6 6 8 जा 20, यानी हमारे पास आ गया ये 1800 मिनट।
1800 मिनट में आंसर पूछा है इन आवर्स, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर. You have known 60 minute equal to 1 hour. Then this time is 1800 minute equal to 1800 divided by 60, 30, then 30 hours. So by this calculation, hence our result is 30 hours taken by this vessel to fill it full. So इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.